Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. This is chapter number 4 for class 8, and this is from the book It So Happened. Now, chapter 4 is an interesting dialogue conversation between two very important people. The title of chapter 4 is The Treasure Within. The treasure within. So before we begin the story, let's quickly look at these 2 points. Every child is a potential achiever and is different from other children in his lifestyle of learning and area of interest. अब देखें, हर बच्चा जो होता है, ठीक है, एक अलग ही उसमें पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, टैलेंट होता है, ठीक है, सीखने का. एंड जिस तरह से सीखता है, जो स्टाइल होता है लर्न करने का, वो भी अलग होता है. और सबके जो इंटरेस्ट होते हैं, हॉबीज़ होती हैं, वो भी अलग होती हैं. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, that is editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore. ठीक है, सो मिस बेला राजा एडिटर हैं एक न्यूज़लेटर की, ठीक है, बैंगलोर में, स्पार्श नाम से. And Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. Now, to tell you about Hafiz Contractor, let me tell you in a nutshell. Hafiz Contractor is an Indian architect. He has designed many skyscrapers in India and mostly in Mumbai city. As of 2019, he is the architect of the 3 tallest buildings in India. The 42 in Kolkata and the Twin Towers of the Imperial in Mumbai. He is of age 70. ठीक है, सो हाफिज सोराब इनका नाम है एंड ये एक आर्किटेक्ट है. इंडिया में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं वो इन्होंने डिज़ाइन करी थी, ठीक है, जैसे कि मुंबई में जो ट्विन टॉवर्स हैं जिनका नाम है द एम्पेरियल. ठीक है, सो ये एक इंटरव्यू है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड मिस बेला राजा में, इनके बीच में, ठीक है, एक इंटरव्यू है. सो लेट अस बिगिन द इंटरव्यू. इट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग वन बाय वन. I hope you enjoy it. I will try my best to portray it to you in an interesting manner. So let us begin. First, Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. Hafiz Contractor जो थे, जब ये स्कूल जाते थे, ठीक है, जब ये स्कूल बॉय थे, मतलब कि जब छोटे थे, ठीक है, तो इनको जो है खुशी नहीं होती थी. अनहैप्पी मतलब खुशी नहीं, खुश नहीं थे ये. He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. उन्हें अलग अलग चीज़ें करने का शौक तो बहुत था, लेकिन उन्हें जो मैकेनिकल लर्निंग थी, जैसे कि मैथमेटिक्स होता था, उससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कांपते थे उससे. What his principal once said to him influenced him deeply. उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उससे एक दफ़े एक ऐसी बात कह दी थी जिससे कि वो बहुत चेंज हुआ था, उनमें उनकी सोच बदली गई थी, उन पे बहुत असर हुआ था. ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग लेट अस बिगिन आवर स्टोरी. ओके, सो HC stands for Hafiz Contractor and BR stands for Bela Raja. Okay, so now let us begin with the interview. So HC, as I said, don't forget in the middle it stands for Hafiz Contractor and BR stands for Bela Raja. Okay, so now HC starts. I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. So nightmare होते हैं जैसे कि रात में जो है बहुत डरावने सपने आते हैं किसी चीज़ से, जैसे हमें डर लगता है, ठीक है, तो उन्हें ऐसे ये सपने आते थे. एंड बस अभी का टाइम है, ओनली नाउ, 4 से 5 साल से जो ये नहीं आते, ठीक है, मतलब अब नहीं आते ऐसे नाइटमेयर. BR, what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? कैसे नाइटमेयर की बात कर रहे हैं, कौन से, एंड अब क्यों गायब हो गए वो, आपको ऐसा क्यों लगता है? Now हफीज सर कहते हैं, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything.
Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. So नाइटमेयर्स जो आते थे, ठीक है, वो था कि एक मैथ्स एग्जाम के लिए वो जाते थे एंड उन्हें कुछ नहीं आता था उसमें. लेकिन अब जो साइक है, साइक मीन्स हमारी माइंड या मेंटालिटी, अब जो है जो साइक है वो इससे उभर चुकी है और अब नहीं सोचता मैं एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और अब टाइम ही नहीं है कि ऐसे ये डरावने सपने आए मुझे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. आपके स्कूल में जो आपकी मेमोरीज थी, बिल्कुल स्टार्टिंग की, शुरुआत की, वो बताएं. In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied. So पहले and second साल में तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, simply lost interest, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया एंड मैंने पढ़ाई नहीं की. I never studied. I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. तो मुझे जो इंटरेस्ट था वो था गेम्स में और इधर उधर भागना और मजाक मस्ती करना औरों पर. I would copy in class during exam times. एग्जाम्स के दौरान मैं कॉपी करता था. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. मैं किसी तरह एग्जाम पेपर ढूंढ निकालता था एंड उसके लिए प्रैक्टिस करता था, प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी करता था, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ें याद नहीं रहती थी. टॉट, दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच, ठीक है, जो पढ़ाई जाती थी क्लास में. However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. फिर भी एक ऐसा सेंटेंस था जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था जिससे कि मेरी लाइफ बदल गई. अब देखते हैं कि ऐसी क्या बात थी. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." So जब मेरा 11th standard आया तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटे, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ. You are a good student, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, but you never studied, पर तुमने कभी पढ़ाई नहीं की. I have taken care of you till today. अब तक तो मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, आज तक का, ठीक है. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. अब आगे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा, सो तुम्हें खुद करना होगा सब कुछ. Yourself मतलब खुद से. He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. So, प्रिंसिपल सर ने मेरे से 5 मिनट तक बात करी, ठीक है. वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं हैं, तुम्हारी मदर ने बहुत मेहनत से काम किया है, तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हारी सारी फीस जमा करी है इतने सालों से, और तुमने क्या किया है, तुमने सिर्फ खेला है. Now you should rise to the occasion and study. अब देखें यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, rise to the occasion. Rise means उठना या जागना, ठीक है. occasion event और study. अब यहाँ पर क्या occasion है, वो ये है कि आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो. अब आपको इस हालात में, इस स्थिति में खुद उठ के खुद जगना होगा, खुद मेहनत करनी होगी, ठीक है, एंड पढ़ाई करें. So, I used to be a very good sportsman. मैं एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्समैन होता था, मतलब कि जो स्पोर्ट्स खेलते थे. I had been the senior champion for so many years and I was also the cricket captain. ठीक है, so senior champion था, who is a champion, जो हमेशा जीतते थे, ठीक है, बहुत सालों तक, and cricket captain भी थे. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. सो वो सारे गेम्स खेलते थे, हर एक गेम, लेकिन उस साल उन्होंने बाहर फील्ड पे कदम नहीं रखा. स्टेप आउट मतलब कदम रखना. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. ठीक है, वो अपने प्रेयर्स के लिए जाते थे एंड उससे अलग खाते थे एंड पढ़ाई करते थे, बस. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. So, अब तक तो वो कॉपी करके पास करते थे,
और जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ, मतलब एहसास हुआ, समझ में आया कि जब वो एसएससी में है अब वो यहाँ ये नहीं कर सकते. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." This is my memory of my school days. So जब सेकेंड क्लास आई थी इनकी 50% एसएससी में, इनके प्रिंसिपल ने क्या कहा, देखो बेटा अपने आप को समझो कि आपका एक डिस्टिंक्शन आया है. डिस्टिंक्शन मीन्स फर्स्ट क्लास. ये मेरी मेमोरी है स्कूल डेज की. ठीक है, ये इनकी यादगार बातें थी. आई डिड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और भी बहुत कुछ चीज़ें की थी. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कैंट रिमेंबर. अब ये जो स्टेटमेंट है एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, इसका मतलब है कि मतलब पढ़ाई से अलग जो ये करते थे वो इन्हें याद नहीं. आई कैंट रिमेंबर. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजली, बहुत आसानी से चीज़ें भूल जाते हैं. टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ. एंड अगर कुछ याद करना है मुझे, ठीक है, तो वो मुझे एज एन इमेज इमेजिन करना पड़ता है, एज अ फोटोग्राफ देखना पड़ता है. ठीक है. I read a book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. That is how it works. So अगर ये कोई किताब भी पढ़ते हैं तो एज अ फोटोग्राफ उसे याद कर सकते हैं कि उस किताब में क्या था, लेकिन उसे जहन में रख नहीं सकते हैं. उनका ऐसा ही चलता था काम. So अब बेला राजा पूछती है, When you were in school and you were doing bad, did the teachers pull you up and how did you feel? So जब स्कूल में थे एंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे या कोई गलत हरकत करते थे तो क्या टीचर्स बुलाते थे एंड आपको कैसा लगता था, मतलब कि टीचर्स पनिश करते थे क्या एंड कैसा फील होता था. आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग. आई वुड रिसीव अ केनिंग एवरी वीक. सो क्या कहते हैं कि मुझे कभी बुरा ही नहीं लगा जब मुझे बुलाया जाता था या पनिश किया जाता था. मुझे खेलने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं हर हफ्ते मेरी पिटाई की जाती थी. केनिंग का मतलब पिटाई होती है. ठीक है. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अब देखें, जब आपको पता है कि आपने टीचर को गुस्सा दिला दिया. wrath of your teacher means टीचर को गुस्सा दिलाना. बिना अगर होमवर्क नहीं करते थे या गलत तरीके से बिहेव करते थे, ठीक है, या बुरा बर्ताव अगर करते हैं एंड आपको पता है कि आपको मारा भी जाएगा, पीटा जाएगा, तो उस समय आपको कैसा फील होता था, आपकी माइंड की क्या स्थिति होती थी. स्टेट ऑफ माइंड, जहनी स्थिति, या माइंड में क्या चल रहा है. हम क्या करते थे, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू. अपना हाथ ऊपर करो उनके लिए एंड वो पिटाई करेंगे. इट वुड हर्ट बैडली, बहुत दर्द होता था. ठीक है, हर्ट होता था, बैडली मतलब बहुत बुरा दर्द होता था. एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वांट टू गो एंड प्ले. फिर मुझे उसके बारे में भूल जाना होता था क्योंकि मुझे तो बाहर जाके खेलना था. ठीक है. यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड. क्या कभी भी इनसिक्योर इज लाइक, क्या आपको कभी भी डर नहीं लगा या जैसे थ्रेटेंड कि अगर टीचर्स धमकी देते थे तो आपको डर लगेगा कि अब क्या होगा अगर मैंने वर्क नहीं किया, तो आपके साथ ऐसी फीलिंग्स नहीं आई. तो क्या कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. मुझे सिर्फ खेल में इंटरेस्ट था और किसी चीज़ में नहीं. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. ठीक है, मजाक मस्ती के जो होते थे, किसी पे कोई ना कोई मजाक करना, वो सबसे अच्छा था. वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस. एक दिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन बना दिया. डिस्ट्रैक्शन वो होता है जैसे कि हम एक रुकावट पैदा करते हैं या ध्यान हटा देते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ाई से, तो मैंने उसमें ध्यान लगा दिया सबका. सो 1 घंटे तक इन्होंने क्या खेला, चोर पुलिस. चोर पुलिस वो गेम होता है ना जिसमें एक बच्चा तो चोर होता है, वो छुपता है और बाकी जो पुलिसमैन होते हैं वो उसे ढूंढते हैं. एवरी सैटरडे वी वे अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी. सो हर सैटरडे को, शनिवार को इन्हें इजाज़त मिलती थी कि सिटी में जाके, टाउन में जाके एक मूवी देखते थे. सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. So उस दिन ये क्या करते थे, घर पे खाना नहीं खाते थे, इंस्टेड 40-50 बच्चों से पैसे लेते थे और जाके टिकट्स ले आते थे. और अपनी वापसी पे, ऑन माई वे बैक, वापसी पे, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट.
ठीक है, अपना दिल भर के खाते थे। अब हर्ट्स कंटेंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि जितना चाहे खाते थे, ठीक है, जितना दिल किया, जितना मन किया, सब खाते थे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, ठीक है, तो मतलब इनका ग्रुप भी था एंड ये उसके लीडर थे, जिसे हम गैंग कहते हैं ना, 4-5 बच्चे अपने दोस्त इकट्ठे होकर एक गैंग बना लेते हैं, इस तरह से। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, ठीक है, सो थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती थी गैंग्स में एंड स्ट्रेटजीज प्लान करते थे, मतलब के तरीके कि कैसे जीतेंगे उन फाइट्स को, स्ट्रेटजीज। These things used to interest me more than my any academics. इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किसी भी पढ़ाई से। एकेडमिक्स का मतलब होता है कोई भी एजुकेशनल मैटर, जैसे कि बुक्स हो, डिस्कशंस हो, सो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था जितना इन गेम्स में था, गैंग्स में, फाइटिंग में, इन सब चीज़ों में। ओके, सो students used my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. So इनकी जो बुक्स होती थी अगले साल जो है बच्चे उन्हें यूज़ कर लेते थे क्योंकि वो नियरली नई ही थी, ब्रांड न्यू मतलब नई ही थी। आई प्रोबेबली, इन्होंने शायद बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही वो बुक्स खोली थी, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसमें क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 से रिलेटेड, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. अब देखें, हमें ये पता है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक आर्किटेक्ट हैं, सो उनका जो है आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। ओके, सो आर्किटेक्चर उनके रास्ते में कैसे आया। उन्हें तो फ्रेंच थोड़ा ही पता था, ठीक है, और थोड़ी ही जर्मन पता था। वो तो मजाक करते थे औरों पे। सो ये सब छोड़ के जब उन्हें आर्किटेक्चर की तरफ उनका ध्यान हट गया, उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा पलटकर वो सारी हरकतें नहीं करी जो वो बचपन से करते आ रहे थे। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। बेला राजा आस्क्स, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, आप तो गेम्स खेलते थे, है ना। सो अब आर्किटेक्चर की फील्ड में आप कैसे आए। In the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. अब जो कॉलेज था आर्किटेक्चर का, उसमें किसी को भी 80 से 85% से कम पे परमिशन नहीं थी, अलाउड नहीं था। मेरे तो सिर्फ 50% थे। I wanted to join the army. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. अब देखें, इनका इंटरेस्ट था कि इन्हें आर्मी ज्वाइन करनी थी, एडमिशन लेटर भी आ गया था, लेकिन इनकी आंट ने उसे फाड़ दिया। टोर जो कि है टीयर का सेकेंड फॉर्म, मतलब फाड़ना। फिर ये क्या फैसला करते हैं कि इन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। अब इनकी मदर क्या कहती हैं वो देखते हैं। माई मदर सेड, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। अब इनकी मदर कहते हैं कि पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, अपनी ग्रेजुएशन कर लो बस, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में। देयर आई वॉज टू टेक फ्रेंच और जर्मन। अब वहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, सो उन्हें फ्रेंच या जर्मन लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। अब देखें, हालांकि इन्होंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, लेकिन इन्हें फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं पता था। सो आई टुक जर्मन, तो फिर ये जर्मन सेलेक्ट करते हैं। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन टीचर जो थे वो मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब कॉलेज क्या कहती है कि जर्मन टीचर मर गया, तो अब जर्मन छोड़ के या तो कॉलेज बदल लो या फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। अब मैंने सोचा 50% लेकर मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। जय हिंद कॉलेज में भी मुझे इन्फ्लुएंस के थ्रू मिला था, मतलब किसी के थ्रू। सो आई थॉट, ओके, आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। अब देखें फील्ड कैसे बदलती है। इन्हें फ्रेंच लेनी पड़ी, ठीक है, तो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं फ्रेंच ले लेता हूँ। अब इन्होंने दोबारा फ्रेंच सीखनी शुरू कर दी। ये अपनी कज़न से सीखते थे। अब इनकी कज़न कौन थी, वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी।
तो ये एक आर्किटेक्ट के ऑफिस जाते थे फ्रेंच सीखने, ठीक है। नाउ बेला राजा आस्क्स, was it then that you decided you wanted to do architecture? वो पूछते तो क्या तब आपने डिसाइड किया था कि आपको आर्किटेक्चर पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको आर्किटेक्ट बनना है। अब क्या कहते हैं, एक्चुअली इट हैपेंड क्वाइट बाय चांस, ठीक है, असल में ये बाय चांस हो गया, ठीक है। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस I saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. अब जब मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में था, मैंने देखा कि कोई एक शख्स जो था वहाँ पर एक खिड़की की डिटेल्स बना रहा था, ड्रॉ कर रहा था, और जो खिड़की की डिटेल होती है वो बहुत एडवांस्ड ड्राइंग होती है। I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. So ये क्या करते हैं, उसे बताते हैं कि ये जो ड्राइंग है ये गलत है, इस ड्राइंग में जो खिड़की है वो खुलेगी नहीं। मतलब जो डायग्राम बनाया था उस बंदे ने, जब उसे असल में बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो खुलेगी नहीं। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. अब वो क्या करता है, वो शर्त लगाता है मेरे साथ कि नहीं खुलेगी खिड़की, लेकिन बाद में पता चलता है कि वाकई में उसकी ड्राइंग गलत थी। My cousin's husband was surprised. अब जो कज़न के हस्बैंड थे उन्हें बड़ी हैरत हुई। He asked me to draw a few specific things which I immediately did. अब वो क्या कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं, वो कुछ खास चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ें मुझे कहते हैं बनाने के लिए, जो मैंने फ़ौरन बनाई। Immediately means फ़ौरन। He asked me to design a house and I designed a house. उन्होंने कहा एक हाउस का ड्राइंग बनाओ, वो मैंने बना दी। After that he told me to drop everything and join architecture. उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। एंड वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। फिर हम प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं उस कॉलेज के। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल वार्नड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। ठीक है, अब प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम्स में हिस्सा लेने के लिए परमिशन दूंगा, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम लिखने के लिए, बट अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ओके।